Good evening, children. I am Amilesh Kumar. Now, today I am going to teach you the first chapter of your computer, that is hands on. Now, just let's see what you have to learn in this chapter. The first chapter is Know Your Computer. So, let's see. This is the first chapter of your book, computer book. What are the things you will have to understand after learning this chapter? After learning this chapter, you understand how the computer stores information, concept of memory, difference between primary and secondary memory, RAM versus ROM, and use of secondary storage media, how we measure memory or storage capacity, then basic structure of CPU. These things, after just watching this video, all the things will be clear to you people. So I'm going to start the first thing. You people can see Tobo and Dobo both are discussing to each other. They are discussing about memory game. You can see I am Tobo, meet my friends Dobo. Dobo, let's play a memory game. Means both are just discussing about memory game. So I'm going to the next part. Now there is observation. Observe the two pictures carefully, find out a spot, any four differences and list these differences in the space provided below. मीन्स यू हैव टू सी, आपको फर्स्ट पिक्चर भी देखना है और सेकेंड पिक्चर को भी देखना है, और जो स्पॉट है उस स्पॉट को देखते हुए क्या क्या डिफरेंसेस है, फोर डिफरेंसेस आपको उसमें मेंशन करना है. तो क्या क्या कर सकते हैं आप, देखिए. तो फर्स्ट पिक्चर देखिए, फर्स्ट पिक्चर इसमें देखिए, both are same, there is no differences. See the second picture, two spots, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी no differences. Now come to the third one just see. In third row, the first picture having 5 dots, but in second picture 3 dots. The same way in second differences you can write in third row. First picture 5 spots are there, but here third row second picture 4 spots are there. Now then move to the third one. See the next row. In first picture 2 spots are here in the first picture, second picture also, but the direction of the dots or spots are different from second picture. You can see here. Then the fourth difference is in row 4, third picture having 2 dots, 2 spots, but in second picture having 3 dots, 3 spots. So you can have to observe according to that, and then differences you have to write. So what the differences you have to write? In second row, first picture having 5 spots, but in second picture 3 spots. Then in third row, second picture having 5 spots, but in second picture 4 spots. Same way, 4 differences you have to write. Moving to the next one. And what Dobo is saying, I found all 4 differences, I used my brain and considered and recalled, means this is just only a brain test. Now moving to the 2 links are given related to the game, so you can just type the links and you can play the memory game. Games will be the same as the above जो हम लोग स्पोर्ट्स का गेम देखे अभी. Now what is memory? I have discussed in the class, but here you can see first picture. This is the human brain and this is what computer. Whatever the things teachers are discussing,
या कोई आपको बोलता है तो आपके दिमाग में वो स्टोर होता है. सेम वे इफ यू वांट टू स्टोर द सेम थिंग इन द कंप्यूटर, सो कंप्यूटर हैज़ अ मेमोरी ऑल्सो. So what Tubo is saying, like we use our brain to store information, similarly computer uses its memory to store the data and information. So the both pictures are here. This is the human brain and this is the computer, and both are using what they are storing data. In human beings ब्रेन में डेटा स्टोर हो रहा है, इंफॉर्मेशन स्टोर हो रहा है, और इन कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर हो रहा है. तो आप इसको ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारा माइंड है, ब्रेन है जिसमें स्टोर होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में भी स्टोर होता है. चलिए, देयर इज वन एग्जाम्पल इज गिवन. I think I had discussed this thing in the class also. Suppose 5-6 memory devices, name of the memory I have written, and just after just 2-3 minutes, if I will erase and how many memories or different types of memory you will recall. So that is what, it's just a test. Now moving to the next one, types of memory. मेमोरी के बारे में आपको और बता दें. वॉट आर द थिंग्स वी आर स्टोरिंग, मीन्स वेयर वी आर जस्ट स्टोरिंग समथिंग फॉर द फ्यूचर यूज, दैट इज कॉल्ड अ मेमोरी. So if you are writing something in the copy, so copy is your notebook is also the example of memory. If you are storing a water in a water bottle, so that is also example of memory. So types of memory, you can see there is 2 types of memory. First one is called primary memory. It's also called main memory. It's also known as internal memory. It's not written here, but you children must know. Primary memory is also known as main memory, or we can say it's internal memory. It is internal memory of a computer system. This primary memory is of 2 types. Means this primary memory further divided in 2 categories. The first one you can see RAM, RAM, RAM. Children, you must remember the full form of this. This is very very important. RAM, random access memory. ROM, read only memory. You can see the pictures. RAM थोड़ा बड़ा होता है, आप देख रहे हैं. ROM जो है वह इनसाइड होता है. ROM का शेप आप देख सकते हैं इस तरह, दोनों इनसाइड ही होता है. और आप लोग जो है वो एग्जीबिशन में आप उसको देखे हैं, और मैंने क्लास में भी इसको दिखाए हैं, रैम को और ROM को तो दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जब तक कि मदरबोर्ड ओपन नहीं होगा तब तक नहीं. बट दिस इज अ पिक्चर ऑफ रैम, दिस इज अ पिक्चर ऑफ ROM. ROM स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी एंड RAM स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. सो द फुल फॉर्म आप सभी को आना चाहिए. देखिए, अब हम लोग जो है दोनों के बारे में जानते हैं. रैम के बारे में, रैम इज शॉर्ट टर्म मेमोरी. शॉर्ट टर्म मेमोरी मीन्स व्हाट, कुछ समय के लिए होता है. बट ROM इज लॉन्ग टर्म मेमोरी, मीन्स कंटेंट जो रैम में होता है वह कुछ समय के लिए होता है, और ROM में जो होता है वह लॉन्ग टर्म के लिए होता है. डेटा कैन बी रीड और राइट. रैम में हम लोग डेटा रीड भी करते हैं, राइट भी करते. इट मीन्स व्हाट, वी कैन रीड मीन्स वी कैन ओपन अ फाइल और वी कैन क्रिएट अ फाइल. बट इन ROM data can only be read, means whatever the things are stored, we can only read, we cannot write. Remember children, in RAM जो फाइल बना हुआ है उसको हम ओपन करके रीड भी कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं. मॉडिफिकेशन मतलब व्हाट, वी कैन राइट. नेक्स्ट वन, इट इज अ वोलाटाइल इन नेचर एंड इट इज नॉन वोलाटाइल इन नेचर. वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, इट मीन्स व्हाट. वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, इसको बहुत सिंपल से बात कर ले. इट्स रिटन हियर, द डेटा इज स्टोर्ड टेम्पररी. वोलाटाइल मीन्स व्हाट, डेटा इज टेम्पररी, एंड नॉन वोलाटाइल मीन्स डेटा इज परमानेंट. इट मीन्स आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे आप कुछ काम करते हैं और उसमें उस फाइल को सेव करना भूल जाते हैं और पावर कट हो जाए, तो फिर यदि आप रैम में आप ओपन करके रखे हुए, बिकॉज जो भी कुछ हम काम करते हैं तो वह जो मेमोरी खुलता है वह रैम का होता है. आप उसको सेव नहीं करते हैं और पावर कट हो जाता है या आप बंद कर देते हैं विदाउट सेविंग, तो यू कैन नॉट रिट्रीव दैट वन नेक्स्ट टाइम. रिमेंबर, तो व्हाई दिस, ड्यू टू दिस वोलेटाइल नेचर. बट ROM जो है वह परमानेंट, आप पावर कट भी हो जाए, बंद भी कर दीजिए, यू कैन रिट्रीव दैट वन. नेक्स्ट वन, इट्स रिटन हियर ऑल्सो चिल्ड्रन,
When power is switched off, the data is lost. Means when power cut, data cut. When power is switched off, the data is not lost. Next one is it holds the data and instructions required and using during processing. ध्यान रहे प्रोसेसिंग समय में यूज होता है. एंड इट्स होल्ड द सिस्टम स्टार्ट अप इंस्ट्रक्शन. बायोस फुल फॉर्म लिख लेंगे चिल्ड्रन आप कॉपी में. बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम विच इज स्टोर्ड बाय द मैन्युफैक्चर कंपनी. मीन्स आपको यदि हम ओवरऑल बात करें तो जो रॉम में जो डेटा होता है ना, दिस इज नॉट फॉर द यूजर. इसमें जो है वह बूटेबल प्रोग्राम होता है, यानी बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या फिर आप कह सकते हैं कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, इस रॉम में होते हैं. और ये जो स्टोर होता है वह जिस कंपनी द्वारा बनाया जाता है उसी समय इसको स्टोर किया जाता है. सो आई होप चिल्ड्रन द डिफरेंसेस बिटवीन रैम एंड रॉम आप सभी को क्लियर हो गया है होगा और आप सभी ने कॉपी में लिख भी लिए होंगे. Now moving to the next one, and yes, very important, both are what RAM and ROM are the types of main memory. Main memory is also called internal memory or primary memory. Now आप देख सकते हैं ROM only reads. देखिए यदि ROM को देख रहे हैं तो ROM में रीड हो रहा है, और रैम में आप पिक्चर देखेंगे चिल्ड्रन तो रैम में देखेंगे तो आप रैम में देखिए नीचे रैम में क्या हो रहा है, लिखा जा रहा है, रीड भी हो रहा है, लिखा भी जा रहा है. कितना अच्छा पिक्चर दिया हुआ है. रॉम ओनली फॉर रीडिंग एंड रैम रीडिंग एज वेल एज राइटिंग चिल्ड्रन. सो आई थिंक चिल्ड्रन अबाउट रैम एंड रॉम concept is clear to everyone. Let's see what Dobo is saying. On simple primary memory, ROM read only memory, but I have never seen RAM and ROM. क्या बोल रहा है डोबो? आप लोग भी रैम और रॉम मैंने पिक्चर में दिखाया, तो अब आप लोग को देखिए एक मूवी दिखाने जा रहे हैं. उस मूवी को ध्यान से देखेंगे आप, और देखने के बाद जो है आपको रैम रॉम और पूरे कंपोनेंट्स के बारे में आपको समझ में आ जाएगा. और आफ्टर जस्ट वॉचिंग दिस वीडियो, यहाँ एक्टिविटी है जो आप सभी बुक में करेंगे. वॉच दिस मूवी केयरफुली एंड नोट डाउन एनी 5 कंपोनेंट्स दैट वेयर शोन इन द मूवी. चलिए चिल्ड्रन इस मूवी को देखते हैं. आप लोग क्या करेंगे कि इसको आप जो देख रहे हैं, जो लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को आप यूट्यूब में या गूगल में आप टाइप करेंगे तो यह वीडियो ओपन हो जाएगा. बट इट मे यू विल फेस अ प्रॉब्लम. आई एम गोइंग टू ओपन दिस वीडियो हियर. देखिए मैंने लिंक को यहाँ कॉपी कर दिया है, टाइप कर दिया है, और देखिए वीडियो, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे आप. A guide to the components inside my computer. Hello and welcome to VideoJug. We're going to show you what the major components inside your computer are and tell you a little about what each of them do. Guiding us on this tour will be Phil Borton of Vista Technology Support in Brighton. Step 1. The major components. The major components of a computer are the motherboard, the CPU or central CPU. processing unit, RAM or the random access memory, the graphics card, the power supply, the hard disk or hard drive, the optical drive, also known as a CD or DVD drive. Step 2. Hardware and software. All of these components are usually found within the tower of a desktop computer. They are referred to as hardware. Hardware can be thought of as the actual physical components that go into the computer. Software refers to the programs and systems that operate within the hardware. Step 3. The motherboard. The motherboard is the heart of the computer. It is the largest and most fundamental component of a PC, and every other component is attached to it in some way. This is because all the different components use the motherboard to communicate and work with each other. The motherboard has a series of slots, sockets and connectors for attaching the components of a PC. In most cases, the memory, accessory cards and CPU are installed directly onto the motherboard. The drives and peripherals communicate with the motherboard through wired connections. There are a wide range of motherboards to choose from. They differ in features, speed, capacity and the CPU supported. They also differ in size, shape and layout. This is commonly referred to as the form factor. Step 4.
The CPU. CPU stands for Central Processing Unit. This is the brain of the computer and is often referred to as the processor or the chip. It is found under a heatsink and fan and sits directly on the motherboard. The CPU directs, coordinates and communicates with the other components and performs all of the thinking. It is not really thinking. What a CPU actually does is perform mathematical calculations. It is the software that people write that translates these calculations into useful functions for us. Step 5. RAM. RAM stands for Random Access Memory and comes as modules in predefined amounts. It is also found directly on the motherboard and usually in 1, 2 or 4 slots. The memory chips store information temporarily for short-term use by the CPU. RAM is used to store information for files that are actually being used by the CPU at any given time. The computer's RAM memory is an entirely different thing from the hard disk memory. The hard disk stores information permanently for long-term use. Step 6. The graphics card. The graphics card or video card translates information into the graphics and text that appear on the monitor screen. Most motherboards now include a slot specifically designed for the graphics adapter called the AGP slot. This stands for Advanced Graphics Port. Modern graphics adapters usually incorporate some memory right on the card to improve their performance. Step 7. The power supply. This supplies power to the other components, which is why it has so many wires coming out of it. It is usually positioned at the back top corner of the computer case. The power supply has a fan built into it to keep itself and the computer cool. Step 8. The hard disk. A hard disk, which is also called a hard drive, is much like a filing cabinet. The programs and data are stored on the hard disk and the computer accesses them as they are needed. When the computer accesses the hard drive, it is reading and moving the stored information into the RAM memory. That memory is the temporary workspace. However, the original file is still on the hard disk and is left undisturbed until the file is saved. When the computer stores or saves information, it writes the data to the hard disk. That process results in the old file being replaced or modified with the new information. If you save data to a new file or install new software, the information is written to the disk in an available, unused portion of the disk. Step 9. The optical drive. The optical drive is often called a DVD drive or a CD drive. It sits at the front of the computer for ease of access and uses a laser to read and write information to CDs and DVDs. Done. I hope children this video is clear to everyone. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको 5 कंपोनेंट्स का नाम लिखना है. तो आप 5 कंपोनेंट्स लिख सकते हैं. क्या क्या 5 कंपोनेंट्स का नाम लिख सकते हैं आप? हार्ड डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, रैम हो गया, मदरबोर्ड्स हो गया, ग्राफिक्स कार्ड हो गया. सारे 5 नाम आप लिख सकते हैं इस पर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ Now come to the secondary memory. Secondary memory in video also it has been discussed. Secondary memory is called the permanent memory. Children आप देख सकते हैं it's called mass memory. It's again called external memory. This is called permanent memory. Permanent memory means once the data has been saved, that will be permanent. That cannot be easily erased. So now just one movie is also there. Watch this video by typing the link given below to understand the difference between primary and secondary memory. So again I'm going to show you the video. आप देखेंगे चिल्ड्रन इसको. I'm going to play from starting. Good day. Test question for the computer. Could you explain primary and secondary storage? Absolutely.
Primary storage, also known as temporary storage, is used by the processor like RAM. RAM, meaning random access memory, would be considered. In primary storage, if your computer were to turn off, all data would be lost. That's why they always recommend you to save your work after every few minutes. Saving anything such as a Word document would move the data into secondary storage, also referred to permanent storage. Examples of secondary storage would be the hard drive, DVD, or a USB memory stick. So, would you say it's like the brain? Primary storage is like short-term memory and secondary is like long-term memory? I guess you could say it like that. Very good. Keep it up and I see great things for you. Thank you, sir. आई होप चिल्ड्रन इस वीडियो में भी आपको समझ में आ गया कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंसेस क्या है। आप इसको देखेंगे और जो डिफरेंसेस है आप ज़रूर लिखेंगे। आप ऐसे मैंने क्लास में करवाया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे, जो मैंने बुक को चेक कर रहा था तो उसमें बहुत सारे बच्चे नहीं लिखे हैं, तो यू मस्ट write this thing. Now children, one just activity is given here. Open a writer and makes two files, namely my hobby and my aim. Type some content in both the file. Save my hobby like file before closing it and close the other file without saving. देखिए यहाँ पर जो बोल रहा है कि दो फाइल बनाना है, एक माई हॉबी बनाना है, एक माई एम बनाना है। और यहाँ पर क्या करना है, सेव माई हॉबीज़ को सेव कर लेना है बंद करने से पहले, एंड क्लोज अदर फाइल विदाउट सेविंग, यानी कि जो माई एम है उसको बिना सेव किए हुए करना है। और उसके बाद बोल रहा है नाउ ओपन बोथ द फाइल्स एंड आर यू एबल टू व्यू द कंटेंट ऑफ बोथ द फाइल्स, इफ नॉट वाई राइट द रीजन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो चलिए हम इसको करके दिखाते हैं। थोड़ा लुक चिल्ड्रन, राइटर मैंने ओपन कर दिया और इस राइटर में जैसा फर्स्ट जो बात किया जा रहा था, फाइल का नाम बोल रहा था माई हॉबी, तो मैं इस फाइल को बनाता हूँ माई हॉबी के नाम पर, पहले सेव कर लेते हैं या फिर हम कुछ इसमें लिख लेते हैं। माई हॉबी इज़ टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम इसको सेव करते हैं। जब हम सेव करते हैं तो मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव कर दे रहा हूँ और यहाँ पर जो नाम दे रहे हैं माई हॉबी के नाम पर उसको सेव कर दे रहे हैं। देखिए इस फाइल में वन सेव मैंने क्या किया, माई हॉबी इज़ टू प्ले क्रिकेट और नाम रख दिए माई हॉबी। अब नेक्स्ट फाइल जो है बनाने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट फाइल में जो है हम क्या कर रहे हैं कि कुछ लिखें इसको, और इसको जो है हम यानी तो पहले हम क्या करते हैं, इस फाइल को जैसा इंस्ट्रक्शन दिया है मैंने सेव कर लिया और नाम दे दिए माई एम, ठीक है। इसमें कुछ लिखे नहीं है, अब इसमें लिख रहे हैं माई एम इज टू बी अ डॉक्टर। अब इस फाइल को मैंने स्टार्टिंग में सेव किया, जो कंटेंट लिखा है उसके बाद मैं सेव नहीं कर रहा हूँ। अब इस दोनों फाइल को डिस्कार्ड कर दे रहे हैं और दोनों फाइल को बंद कर दे रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, अब देखिएगा मेरे डेस्कटॉप पर जो है आप देख रहे होंगे माई हॉबी और माई एम नाम का फाइल है। माई हॉबी में क्या किए थे कि मैंने टाइप किया उसके बाद सेव किया, और माई एम में क्या किए कि मैंने पहले सेव किया फिर टाइप किया उसके बाद सेव नहीं किए। देखिए माई हॉबी में जो था वो कंटेंट रहेगा, आप देख सकते हैं माई हॉबी इज़ टू प्ले क्रिकेट। लेकिन यदि हम इसको देखें माई एम देखें तो इसमें वह कंटेंट नहीं रहेगा। और यही एग्जाम्पल है आपका रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी, टेम्पोररी मेमोरी। चलिए अब आगे का बात करते हैं। आप सभी को समझ में आ गया क्या डिफरेंसेस है। लिखा हुआ नाउ ओपन बोथ द फाइल्स, आर यू एबल टू व्यू द कंटेंट ऑफ द बोथ फाइल्स, इफ नॉट वाई राइट द रीजन इन द स्पेस प्रोवाइड। तो व्हाट विल द आंसर? फर्स्ट वन क्या किए थे कि जब मैंने इस फाइल को बनाया तो मैंने सेव कर दिया। सेव करने का मतलब वो जाकर हार्ड डिस्क में परमानेंटली सेव हो गया। दूसरा जो फाइल था मैंने सेव किया बट जो कंटेंट लिखा उसमें उसको सेव नहीं किया, मतलब लिखा हुआ कंटेंट
वह हमारा हार्ड डिस्क में नहीं गया, और जब मैंने उसे बंद कर दिया तो वह फाइल, वो कंटेंट गायब हो गया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, एक में फाइल था, द फर्स्ट वन फाइल कंटेंट वॉज देयर बिकॉज इट हैज़ बीन सेव्ड इन द हार्ड डिस्क, बट सेकेंड the content was not saved, it means the content was not in the hard disk, that's why that content is not visible। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, एक ग्रुप एक्टिविटी है, इसमें आइडेंटिफाई करना है क्या है, रैम है, ये सबको जो है मैं क्लास में कराया हूँ। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस यानी कि जो कि हम परमानेंटली डेटा को स्टोर करते हैं, और मैंने इसको क्लास में दिखाया है। क्या है स्टोरेज ऑफ डेटा रिक्वायर्ड सम मीडिया टू स्टोर इंफॉर्मेशन टिल इट इज डिलीटेड और ऑपरेटेड बाय द यूजर। तो पहला इसमें आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को दूसरा नाम बोलते हैं फिक्स हार्ड डिस्क, एंड आई हैड शोन इन द क्लास। हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क is a non-volatile memory devices that permanently stores the information. It is fixed inside the CPU। इसे CPU में अब एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आता है। दो तरह का हार्ड डिस्क होता है, इंटरनल एक्सटर्नल। जो इंटरनल होता है वह अंदर CPU में फिक्स होता है, जिस तरह से आप वीडियो में भी देखे थे। और हार्ड डिस्क को हम लोग हार्ड ड्राइव बोलते हैं, HD भी बोलते हैं और STD भी बोलते हैं। तो चलिए ध्यान रखेंगे। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर, दिस इज द हार्ड डिस्क। पोर्टेबल हार्ड डिस्क यानी कि इंटरनल जो हार्ड डिस्क होता है पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स क्या होता है चिल्ड्रेन, कि पोर्टेबल डिवाइस मीन्स दैट डिवाइस कैन बी इजीली कैरी फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर प्लेसेस, और उसको हम लोग पोर्टेबल बोलते हैं। और पोर्टेबल देखिए यहाँ पोर्टेबल का मतलब दिया हुआ भी है। पोर्टेबल हार्ड डिस्क एज द नेम सजेस्ट आर वेरी यूजफुल बिकॉज यू कैन कैरी डेटा एनीवेयर एंड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम्स, पिक्चर etc बिटवीन कंप्यूटर्स। नेक्स्ट जो है वह CD, ROM, DVD, जिसको हम लोग DVD को डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी बोलते हैं। समवेयर यू विल गेट वो डिजिटल वीडियो डिस्क, सो डोंट बी कंफ्यूज। CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। आप सभी देखे हैं CD DVD को, जो भी डेटा को स्टोर करता है और आसानी से हम लोग कॉपी और कैरी करते हैं। ब्लू-रे डिस्क, ब्लू-रे डिस्क एक नया है। ब्लू-रे डिस्क को हम लोग BD भी बोलते हैं, BRD भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर इसको जानना जरूरी है। एन ऑप्टिकल डिस्क इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज मीडियम that can be written on read using a low powered laser beam, जो कि उसको रीड किया जाता है, राइट किया जाता है, पावर बीम के थ्रू रीड किया जाता है। रेजोल्यूशन इज डिफाइंड एज द मैट्रिक्स ऑफ पिक्सल पर इंचेस। और रेजोल्यूशन जो है यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर पिक्सल इज अ सिंगल डॉट ऑन द कंप्यूटर। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है आप सभी अवेयर हैं एंड सभी के पास होगा पेन ड्राइव, USB फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, सभी ने देखा है इसको, मैंने क्लास में भी दिखाया है। अब कुछ यहाँ पर आइडेंटिफाई करने का है, क्लास में एक्टिविटी करवाए हैं। अब आते हैं हम लोग हैंड्स ऑन, और इसको आप जो बच्चे नहीं किए हैं वो कर लेंगे। फाइंड आउट सम मेमोरी डिवाइसेस बीइंग यूज्ड इन द कंप्यूटर लैब। मैंने दिखाया है कौन कौन से जो है नेम ऑफ मेमोरी डिवाइसेस इन कंप्यूटर लैब। तो जैसे आपका यहाँ पर रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, CD हो गया, DVD हो गया, पेन ड्राइव हो गया। और मेमोरी टाइप क्या क्या मेमोरी टाइप है, यदि हम यहाँ पर रैम बात करते हैं तो मेमोरी हमारा मेन मेमोरी हो गया, ROM बोल रहे हैं तो मेन मेमोरी हो गया, यहाँ पर हार्ड डिस्क हो गया तो हमारा यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी हो गया, यदि हमारा CD है तो सेकेंडरी मेमोरी है, DVD है तो सेकेंडरी मेमोरी है। तो मैंने क्लास में करवाए हैं, जो बच्चे नहीं किए हैं इसे कर लेंगे। यूज दिस डिफरेंट स्टोरेज डिवाइस अवेलेबल इन द लैब टू accomplish द फॉलोइंग टास्क। टू ट्रांसफर अ फाइल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल ट्रांसफ़र करना होता है तो हम लोग पेन ड्राइव यूज कर सकते हैं, CD यूज कर सकते हैं, DVD यूज कर सकते हैं। टू सबमिट अ प्रोजेक्ट राइट अ फाइल टू द टीचर, CD कोई प्रोजेक्ट है तो आप CD को रेफ़र करेंगे। टू सेव द वर्क डन इन द कंप्यूटर लैब, तो हार्ड डिस्क हम लोग करेंगे। टू सेव अ मूवी फाइल, तो देखिए मूवी जो है ना CD में नहीं, मूवी बड़े बड़े होते हैं तो आप उसको पेन ड्राइव में सेव कर सकते हैं या हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हैं। टू इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर इन द कंप्यूटर यू कैन से CD, DVD और पेन ड्राइव। तो मेरे क्लास में स्टोरेज डिवाइस यूज करवाए हैं, जो नहीं किए हैं वो कर लेंगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, मेजरिंग स्टोरेज कैपेसिटी। यस, कैसे हम लोग मेजर करते हैं, जिस प्रकार से हम लोग ना, यू ऑल हैव अ स्केल में देखते होंगे सेंटीमीटर, मिली सेंटीमीटर और इंचेस होते हैं। किस लिए होते हैं चिल्ड्रन? तो लेंथ को मेजर करने के लिए होता है। आपको पूछा जाए कि आपका पेन का लेंथ क्या है, आपका डेस्क का लेंथ क्या है, आपके पेंसिल बॉक्स का लेंथ क्या है, तो हाउ यू विल मेजर? विद द हेल्प ऑफ अ स्केल यू विल मेजर। So for measuring the length we use centimeter, meter, but for measuring a storage
we have to use following units. What following? Yes, you people have written the copy. I have seen your copy. BIT stands for binary digit. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मेमोरी मेजरमेंट यूनिट है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी मेजरमेंट यूनिट, वह क्या है? हमारा जो है बीट, नीबल, बाइट, मैंने इसको क्लास भी करवाया है। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, 1 किलो बाइट इक्वल टू 1024 बाइट्स, 1 मेगा बाइट इक्वल टू 1024 किलो बाइट्स, और 1 गीगा बाइट इक्वल टू 1024 मेगा बाइट्स। मैंने क्लास में करवाए हैं, याद भी करवाए हैं बच्चे लोग को। तो ये देखिए, पूछिए आपसे, इफ एनीबडी विल आस्क टू यू कि हाउ यू कैन मेजर मेमोरी, कैन यू टेल मी द मेमोरी यूनिट, तो यू पीपल हैव टू से येस, अ स्मॉलेस्ट memory measurement unit is beat, BIT, beat, and it stands for binary digit. Now one thing I want to tell you, nibble is not in use. Nibble अब यूज नहीं होता है। बीट के बाद बाइट, देन KB, देन MB, देन GB। चिल्ड्रन ध्यान रहे। अब हम लोग जो है यहाँ पर एक्टिविटी दिया हुआ है, आप करेंगे। यहाँ पर भी कुछ एक्टिविटी हैंड्स ऑन दिया हुआ है, और इसमें क्वेश्चंस पूछा गया है। यहाँ पर यूट्यूब का एक वीडियो है यहाँ पर, तो आई एम गोइंग टू प्ले दिस वीडियो चिल्ड्रन, एंड देन यू विल बी एबल टू राइट द आंसर। यस चिल्ड्रन, मैंने इस वीडियो को कॉपी कर लिया है, आप इसको ध्यान से देखेंगे चिल्ड्रन, और बुक में आंसर देंगे। यस चिल्ड्रन, आप सभी देख चुके हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं। इस वीडियो में जो फ्लॉपी डिस्क का दिखाया है, लेकिन लास्ट जो फ्लॉपी डिस्क था वो 5 MB तक आया था। CD का साइज, नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, आप किसी भी तो CD का साइज़ मैंने बताया 700 MB, DVD का 4.7 GB, हार्ड डिस्क जो है वो 80 to 1 TB तक, 80 GB से लेकर 1 TB तक होता है। पेन ड्राइव 1 GB, 2 GB टू लेकर 64 GB, अभी और भी आगे आ गए हैं। तो आप सभी इसको किए हैं, जो नहीं किए हैं बच्चे इसको जरूर कर लेंगे। नाउ मूविंग द नेक्स्ट पार्ट, वन एक्टिविटी इज गिवन, लिखा हुआ वॉच द फॉलोइंग वीडियो, फाइंड आउट द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ योर PC। अब यहाँ पर एक और वीडियो है, और तो मैं इस वीडियो को अभी नहीं दिखाना चाहूँगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है। तो अब मूविंग द नेक्स्ट पार्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ CPU का जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो उसका पार्ट है, मैं इसको समझा दूँ। देखिए, ये पिक्चर को ध्यान से देखेंगे, मैंने क्लास में ही बताया है। जो कंप्यूटर जो काम करता है हमारा, वह इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है। इनपुट, देन प्रोसेसिंग, देन आउटपुट, और दिस इज द बेसिक डिजिटल कंप्यूटर, मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर, यू कैन से द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर। इस पिक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, इससे इनपुट जा रहा है, दिस इज द पार्ट ऑफ CPU में क्या क्या है आपका, CU कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एंड हियर मेन मेमोरी और मास मेमोरी। तो यहाँ से जो भी इनपुट आता है, कंट्रोल यूनिट से भी जाकर प्रोसेसिंग होता है, ALU में मेमोरी में जाता है, फिर जाकर ये आउटपुट होता है। तो आप यदि इसको रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा इनपुट यूनिट क्या होता है, कि इनपुट यूनिट मीन्स इनपुट डिवाइसेस, मीन्स द डिवाइसेस थ्रू विच वी कैन या वी आर गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर। Such devices are called input devices. Example of input devices are keyboard, mouse, light pen, a scanner, then you can see the mic,
webcam, these are what input devices. CPU, central processing unit, it's responsible for processing the data, means you can say the processing unit, you can see this is input unit, this is processing unit, and this is output unit. So data fed the users, for example sorting the data, performing calculation on it, saving it on the computer of memory, मतलब जो प्रोसेसिंग का काम होता है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ CPU. और CPU का जो पार्ट है CU, फर्स्ट पार्ट इज CU, इट्स कॉल्ड कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल्स ऑल द कंपोनेंट्स by issuing control signals. ALU, arithmetic and logic units or logical units, performs all the calculations और carries out the instructions of a computer. यानी जितने भी calculations होते हैं, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन हो, लॉजिकल कैलकुलेशंस हो. लॉजिकल कैलकुलेशन क्या होता है? कंडीशन बेस्ड ऑपरेशंस. नेक्स्ट मूविंग टू दिस MU, memory unit, store the data instructions, result processing and output, the devices through which we are getting something from the computer, call output device or devices like printer, monitor, speaker, projector. These are what? Output devices. So I hope children all the things are clear to you people. Hands-on is given. Check your computer lab and list the various input output devices. You can write input devices, output devices. Switch off the power cable, open the system unit, show the various part of the CPU or watch the video by clicking on the link below. आप इस वीडियो को घर में देख लेना children, and note down any 5 parts of CPU that were shown in the above movie. तो 5 parts of the CPU, तो CPU में आप ऐसे इसके पहले भी वीडियो में दिखाए थे, तो आप लिख सकते हैं वहाँ पर. सो ये सारे जो हैं वह चैप्टर 1 के हैं. अच्छा से एग्जांपल दिया हुआ है. इनपुट का मतलब क्या होता है, आप देख रहे हैं पिज़्ज़ा बेस टॉपिक, उसको पकाया क्या जाए, रॉ मटेरियल जो पिज़्ज़ा का है ओवन में पकाया जाता है और फाइनली आपके पास आता है. दिस इज़ इनपुट, देन प्रोसेसिंग एंड देन आउटपुट. इसको हम लोग बोलते हैं IPO साइकिल, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल. अब इसी तरह से यहाँ पर आपको जो है एक एक्टिविटी है यहाँ पर, टू रीच अ स्कूल के लिए हमारा इनपुट क्या होगा, इनपुट क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा और आउटपुट क्या होता है. हम लोग स्कूल जाते हैं तो बस वगैरह से स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो पढ़ाना जो है वहाँ जो टीचिंग लर्निंग होता है दैट इज़ प्रोसेसिंग. एंड आउटपुट क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम में लिखते हैं, आप जो मार्क्स आपका जो आता है दैट इज़ आउटपुट. टू मेक अ लेमनेड, इसका टू इशू अ बुक फ्रॉम लाइब्रेरी, कॉल अ पर्सन, तो इसमें इनपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, आप कर लेंगे चिल्ड्रन इसको. देन आइडेंटिफाई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, process output devices in the following. To give a printed leaves application to the class teacher. टास्क है तो कोई क्या है, प्रिंटेड देना है, तो दैट इज़ व्हाट आउटपुट होगा. और आउटपुट डिवाइस का नाम क्या होगा, प्रिंटर, बिकॉज आप प्रिंटेड कॉपी दे रहे हैं. तो यहाँ आंसर आप क्या लिखेंगे चिल्ड्रन, आउटपुट. आउटपुट क्या हो गया आपका, जो एप्लीकेशन हो गया हार्ड कॉपी, और आउटपुट क्या हो गया, आउटपुट डिवाइसेस आपका क्या हो गया, प्रिंटर. टू स्कैन अ फोटोग्राफ एंड सेव इन योर कंप्यूटर, तो इनपुट में हमारा स्कैनर हो गया या डॉक्यूमेंट हो गया, और इनपुट डिवाइस स्कैनर हो गया. उसी प्रकार टू मेल द सेव, तो इस तरह से आप करेंगे चिल्ड्रन. नाउ नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट वन, असेसमेंट हैंड्स ऑन है. यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर दिया हुआ है. अब हम थोड़ा सा यहाँ पर इस एक्टिविटी को भी कर ले थोड़ा सा. देखिए यहाँ पर क्या है, राहुल डाउनलोड्स द फाइल इतना MB का, ठीक है. ही हैज़ सबमिटेड दिस फाइल्स टू हिज टीचर्स. कैन यू हेल्प हिम बाय सजेस्टिंग हिम वेदर ही शुड यूज CD और पेन ड्राइव. हाउ मेनी CDs he required to store these files, तो and how many pen drives he required to store these files. तो चिल्ड्रन देखिए यहाँ पर जो है 3072 MB है, और 1 GB में हमारा जो है वह कितनी MB होते हैं, 1024 MB होते हैं. तो यहाँ पर देखिए 2 GB का पेन ड्राइव में बात करें तो यहाँ पर 1024, उस केस में यदि हम MB में कन्वर्ट करें 2 GB को, तो 1024 यानी कि यदि हम उसको 1000 माने तो यस, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 1024, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, लगभग 3072. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3072, तो हमें कितने GB
2 GB के पेन ड्राइव या कितने चाहिए पेन ड्राइव, तो 3 पेन ड्राइव चाहिए। और 8 GB का कितने चाहिए, तो 8 GB का एक ही चाहिए। तो यहाँ पर आप 3 डाल सकते हैं और यहाँ 1 डाल सकते हैं। अब बोलता है हाउ मेनी CDs ही रिक्वायर्ड टू स्टोर दीज फाइल्स। So CD by default size, storage size is 700 MB. Just divide it. 7 4s are 28. 7 5s are 5 CDs are required here. Now according to you, which should be most appropriate storage device to be used for this purpose and why? So that you have to write by on. तो यहाँ पर आंसर आप खुद लिखेंगे। और ऐसे एक्चुअली यदि बात करें तो यदि सबमिट करना हो स्टोरेज कम है तो CD ज़्यादा बेटर होगा, बट यदि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है और उसे देखकर वापस लेना है तो बेटर पेन ड्राइव होगा। बट फॉर सबमिटिंग अ फाइल जस्ट गिविंग टू समवन, तो यू कैन यूज व्हाट CD। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट चिल्ड्रेन, दिस इज़ द क्रॉसवर्ड। आप इसमें करेंगे आप नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर द वर्ड मेजरिंग। तो कितने मेजरिंग में आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप यहाँ पर देखेंगे तो 9 का ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर डाउन में लिखना है दिस यूनिट मेमोरी इज़ इक्वल टू इतना। आप यहाँ पर इसको करेंगे क्रॉसवर्ड और यहाँ पर आपको नाम लिखना है चिल्ड्रन। तो आप बुक में ज़रूर कर लें इसको, क्या है 1 का इसका नाम क्या है। तो 1 में हमारा देखिए मॉनिटर है, आप मॉनिटर में मेंशन करेंगे यहाँ पर। ऑब्जर्व द कंप्यूटर सिस्टम शोन बिलो, आइडेंटिफाई द नंबर्स एंड क्लासीफाई द कंपोनेंट्स एज ए इनपुट और आउटपुट। तो 1 देखिए यहाँ 1 क्या है हमारा, 1 हमारा क्या है आउटपुट डिवाइस। फर्स्ट वन इज आउटपुट डिवाइस, सेकेंड यू कैन सी सेकेंड इज मॉडेम। It's what is this input or output devices? So modem is either input or output devices. It's what network devices. Third one is system unit. System unit अब third में देखेंगे system unit. It's a processing unit. Mouse you can see this is mouse. So mouse is what input device. A speaker, this is output device. Printer, this is output device. Keyboard, this is what input device. तो इस तरह से आप चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए एंड जस्ट आफ्टर watching this video the concept of chapter 1 will be clear to you people, and if you have a computer at your home you must just implement C. So thank you very much for watching this video. Thank you.